Hello student, welcome to next lecture of programming in C. From today we start the fifth chapter, that is function. This chapter have 14 marks and this is our first lecture. So let's see the fifth chapter, function. So first we see the learning outcomes of this video. At the start we see what is the function. Next we see what is need of the function. And then next at last we see the type of function. So these are the learning outcome of today's video. First, what is function? Okay, so let's see simple example. In we up to fourth chapter we write many programs. Okay, in that program we only use the we use some specific functions like main function. Okay, then printf function, scanf function, getch function, clr, scr function. Okay, so basically function is the line of code. Okay, function is the set of instruction which perform some specific task. अभी simple example लेना है printf. Okay, what is use of printf? To print the message or output on the screen. Okay, printf function को बोलोगे input के लिए use करो तो it is not possible. Why? Because printf is the output function. क्यों use होता है उसका use क्या है? Output display करने के लिए. Similarly, the next function is scanf function. Scanf function is the input function which used to take the input from keyboard. Okay, and store in respect to variable. Okay, अगर scanf को हम बोलेंगे कि मैसेज डिस्प्ले करे स्क्रीन के ऊपर, ओके, और कंसोल में मैसेज डिस्प्ले करे, सो इट इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज scanf इज द इनपुट फंक्शन. इट कैन नॉट यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट. ओके, सो सिंपल इन बेसिक वर्ड, फंक्शन यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क. एवरी फंक्शन, हर एक फंक्शन का एक कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टास्क रहता है, वो वही परफॉर्म करेगा. सिमिलरली getch फंक्शन और clr scr हमने अभी तक यूज किया है. clr scr दैट इज क्लियर स्क्रीन. ओके, सो दिस फंक्शन इज ओनली यूज टू क्लियर स्क्रीन. उसको अगर दूसरा टास्क करने को बोलेंगे वो परफॉर्म नहीं करेगा. सो लेट्स सी सम पॉइंट्स रिगार्डिंग फंक्शन. In C, we can divide a large program into basic building block that is called as function. Okay, प्रोग्राम को अगर हम डिवाइड करें तो उसको हर एक फंक्शन में डिवाइड कर सकते हैं. तो we can also say C program is the collection of function, and in every function there is one main function. Okay, every program there is main function. Okay, main function user defined function है. User defined क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे. Okay. Then next one, the function contain the set of programming statement enclosed by the curly bracket. Okay, जो भी function का statements रहेगा वो हम किस में लिखते हैं? curly bracket. Next one, a function can be called multiple times to provide reusability and modularity to the C program. अभी ये क्या point है? First, function can be called multiple times. Okay, so printf function हम बार बार लिखते हैं प्रोग्राम में. फर्स्ट एंटर 2 नंबर्स के लिए printf फंक्शन लिख दिया. आउटपुट एडिशन इज इक्वल टू दिस, उसके लिए printf फंक्शन यूज किया. ओके, सो फंक्शन वी कैन कॉल फंक्शन मेनी टाइम्स. जितना भी उसका यूज है, हमको जहाँ उसका यूज करना है वहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करते हैं. तो सिंपल पॉइंट इज फंक्शन कैन बी कॉल मल्टीपल टाइम्स. आपको जितनी बार चाहिए उतनी बार हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. कैसे कॉल करना है, फंक्शन कैसे डिफाइन करना है, ये हम ये चैप्टर में देखेंगे. Okay, so yes, theoretical first, understand the theoretical part, then we see the programming. Okay, so the basic use of function or we can say advantage, provide reusability and modularity in the program. Next point is, in other words, we can say the collection of function create a program. Okay, मैंने पहले भी बताया, हम ऐसे ही बोल सकते हैं C program is the collection of function. Then in simple word, function is the set of instruction which perform some specific task. Okay, function क्या है? set of instruction है और वो एक specific task perform करता है. Okay, so this is basic about function. Next we see some advantages and need of function. First advantage, by using function we can avoid rewriting same logic code again and again in the program. ओके, सिंपल एग्जांपल, अगर मुझे एक फंक्शन लेना है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स. ओके, एडिशन के लिए मैंने एक फंक्शन लिख दिया. क्या परफॉर्म करेगा वो? एडिशन, 2 नंबर का एडिशन परफॉर्म करेगा. ओके, अभी मुझे
5 स्टूडेंट का 2 सब्जेक्ट का मार्क्स का एडिशन चाहिए। ओके, तो मैं 5 बार कोड लिखना पड़ेगा मुझे अगर विदाउट फंक्शन लिखना है। ओके, 5 स्टूडेंट का 2 सब्जेक्ट का मार्क का एडिशन चाहिए। ओके, सो सिंपल मैं क्या करूँगा, आई राइट वन फंक्शन एंड आई कॉल द फंक्शन 5 टाइम्स। ओके, तो 5 बार जो कोड लिखने वाले थे हम लोग, मैंने एक ही बार लिखा और सिंपल उसको सिर्फ कॉल कर दिया। ओके, सो लाइन ऑफ कोड जो री राइट सेम लॉजिक कोड मीन्स वो एडिशन के लिए मुझे 5 बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो सिंपल आई कैन राइट वंस आई राइट द कोड एंड आई कैन कॉल दैट कोड अगेन एंड अगेन। ओके, ये कैसे परफॉर्म होता है हम आगे देखेंगे। ओके, सो सिंपल एक एडवांटेज है, वी कैन अवॉइड री राइटिंग ऑफ सेम कोड। ओके, अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन कॉल सी फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन प्रोग्राम एंड फ्रॉम एनी प्लेस इन द प्रोग्राम। ओके, सो ये भी एक अनदर पॉइंट है, जो अगर मैंने 5 स्टूडेंट का एडिशन फाइंड करना है, 5 स्टूडेंट के 2 सब्जेक्ट का मार्क्स का एडिशन फाइंड करना है, तो मैं 5 बार कॉल करूँगा। 10 स्टूडेंट का फाइंड करना है तो मैं 10 बार कॉल करूँगा। ओके, सो इसका ऐसा लिमिट नहीं है, आप कितने भी टाइम उसको कॉल कर सकते हो एंड इट परफॉर्म द सेम टास्क अगेन एंड अगेन फॉर डिफरेंट इनपुट। नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन ट्रैक अ लार्ज सी प्रोग्राम इजीली व्हेन इट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फंक्शन। ओके, जब हम सी प्रोग्राम, अभी जो एक बेटर प्रोग्रामर है, जो गुड प्रोग्रामर है, वो क्या करेगा, प्रोग्राम को डिवाइड करेगा फंक्शन में। अभी अगर उसने प्रोग्राम को डिवाइड किया फंक्शन में, अभी हम लोग सिंपल प्रोग्राम ले रहे हैं। ओके, जब आप कोई एप्लीकेशन के लिए लार्ज प्रोग्राम लिखते हो तो इट इज मस्ट, और ये इम्पोर्टेंट है कि वो प्रोग्राम समझना भी चाहिए सामने वाले को। आपने लिखा आपको समझेगा, लेकिन अगर किसी दूसरे ने यूज करने को वो कोड ले लिया तो उसको वो समझना चाहिए। ओके, सो बेटर प्रोग्राम, गुड प्रोग्रामर क्या करेगा, वो प्रोग्राम को फंक्शन में डिवाइड करेगा। ओके, सो फंक्शन में डिवाइड करने के बाद इट इज इजीली अंडरस्टैंड। ओके, सो उसका और हर एक जो भी यूज करने वाला है वो कोड को, तो उसको वो समझ में आ जाएगा और वो he and she can easily understand the written code. Okay, next point is reusability is the main achievement of the C program. Reusability, what is reusability? अगर मैंने एक एडिशन का कोड लिखा, वही मैंने सेम एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर मैंने एक एडिशन का कोड लिखा और मुझे 5 स्टूडेंट के 2 सब्जेक्ट का एडिशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, वो फंक्शन अगेन एंड अगेन कॉल करूँगा, तो उसका वो कोड यूज हो रहा है, वापिस 5 बार यूज होगा वो कॉल करने के बाद। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। देन नेक्स्ट पॉइंट, हाउएवर फंक्शन कॉलिंग इज ऑलवेज ओवरहेड इन द सी प्रोग्राम। ओके, सो इट इज द एडवांटेजेस ऑफ सी प्रोग्राम। देन व्हाट इज नीड ऑफ सी प्रोग्राम, sorry, C function. These are the advantage of function, and what is need of function to improve the readability of the code. Okay, readability means read करने की क्षमता। Okay, so read करने की वो जो capability है वो easily we can read easily the C program when it developed or designed by using various functions. Next, improve the reusability of the code. Same function can be used in any program rather than writing the same code for scratch. Okay, वो same point है, we can use again and again same code. Debugging of the code would be easier if you use function, as errors are easy to be traced. Okay, so function अगर use करके प्रोग्राम लिख रहे हो तो it is easy to understand and error find करने के लिए भी वो easy रहता है। Okay, we write many programs up to 4 chapter. Okay, जैसे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, फाइंड इवन एंड ऑड, फाइंड नंबर इज इवन और ऑड। ओके, ऐसे बहुत प्रोग्राम लिखे। ऑल प्रोग्राम्स वी कैन राइट बाय यूजिंग फंक्शन। आप फंक्शन का यूज करके वो सब प्रोग्राम लिख सकते हो। कैसे लिखना है बाद में समझेगा। नेक्स्ट वन हियर, फंक्शन टर्मिनोलॉजी। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ फंक्शन टर्मिनोलॉजी, फंक्शन में क्या क्या रहता है और फंक्शन प्रोग्रामिंग में यूज करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। Okay, so first terminology is function declaration. A function must be declared globally in a C program to tell the compiler about function name, function parameter and return type. Okay, so जब कोई भी फंक्शन आप यूज करते हो, okay, basic there are 2 types of function, library function and user defined function. ये भी आएगा,
लाइब्रेरी फंक्शन में व्हाट इज लाइब्रेरी फंक्शन, दैट ऑल्सो वी सी। ओके, तो अभी तक हमने प्रिंटफ फंक्शन देखा है, स्कैनफ फंक्शन देखा है, दीज आर द लाइब्रेरी फंक्शन। व्हेन वी यूज दिस फंक्शन इन आवर प्रोग्राम, दैट टाइम वी डिफाइन द हेडर फाइल्स। हेडर फाइल क्यों डिफाइन करते हैं, क्योंकि stdio.h ये जो लाइब्रेरी उसमें कौन से फंक्शन प्रेजेंट है, प्रिंटफ एंड स्कैनफ। ओके, तो जब हमको वो यूज करना है प्रोग्राम में, दैट टाइम वी डिफाइन द stdio.h बिफोर द प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हम हेडर फाइल डिफाइन करते हैं। ओके, सो उसका ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है वो फंक्शन, देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर द प्रिंटफ फंक्शन। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑलरेडी डिक्लेयरिंग द रिस्पेक्ट टू हेडर फाइल्स। ओके, सो जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन, मुझे अगर मेरा कोई फंक्शन बनाने का है, ओके, यूजर डिफाइंड मतलब प्रोग्रामर जो फंक्शन डिफाइन करता है उसके लिए उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, और जो फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन किया रहता है उसको बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। Okay, so these two are the main type of function, library function and user defined function. Okay, so user defined function हम देखेंगे तब ये वापस आएगा। Function declaration means a function must be declared globally. Globally means it is declared outside the main function. C प्रोग्राम में हम जब main function लिखते हैं, स्ट्रक्चर भी हमने कहाँ पे डिक्लेयर किया, आउटसाइड द मेन फंक्शन। फंक्शन का डिक्लेरेशन भी कहाँ पे करना है आपको, आउटसाइड द मेन फंक्शन। ये जो दो चीजें हैं, फर्स्ट टू फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डेफिनेशन, ये आपको मेन फंक्शन के बाहर करना है। ओके, और फंक्शन कॉल आप कहाँ पे भी कर सकते हो, मेन फंक्शन में भी आएगा, मेन फंक्शन में आएगा, अगर आप कोई दूसरे फंक्शन में कॉल करना चाहते हो वहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो। ओके, तो फंक्शन डिक्लेरेशन फर्स्ट पॉइंट इज इट इज डिक्लेयरिंग ग्लोबली इन सी प्रोग्राम। ग्लोबली मतलब आफ्टर हेडर फाइल्स के बाद में आपको फंक्शन डिक्लेरेशन देना है। फंक्शन डेफिनेशन आप प्रोग्राम में कहाँ पे भी कर सकते हैं, आउटसाइड द मेन फंक्शन के बाहर। एक तो स्टार्टिंग में करो, डिक्लेरेशन के टाइम किया तो भी चलेगा, और सेपरेटली किया तो भी चलेगा। नेक्स्ट वन, फंक्शन डेफिनेशन, इट कंटेन द एक्चुअल स्टेटमेंट्स विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट टू विच द कंट्रोल कम्स व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। ओके, जब आपका फंक्शन कॉल होगा तो सिंपल उसका मीनिंग क्या है, कॉल होगा मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन वो फंक्शन में लिखा है वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, सो व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड द एग्जीक्यूशन इज स्टार्ट, कंट्रोल गोज इनसाइड द फंक्शन डेफिनेशन। ओके, हियर वी मस्ट नोटिस दैट ओनली वन वैल्यू कैन बी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। ओके, सो रिटर्न वैल्यू क्या रहता है ये भी देखेंगे हम। फंक्शन रिटर्न, अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है मतलब उसका आउटपुट कुछ तो आ रहा है फंक्शन का, अगर वो रिटर्न कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप रहेगा। ओके, अगर कुछ नहीं कर रहा है तो देन दैट टाइम वी राइट void फंक्शन, सॉरी void इज द रिटर्न टाइप, जब व्हेन फंक्शन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। देन फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। द पैरामीटर लिस्ट मस्ट नॉट डिफर इन द फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। अभी पैरामीटर लिस्ट क्या है वो भी देखेंगे। We must pass the same number of function as we declare in the function declaration. Okay, अगर function declaration में आपने दो पैरामीटर लिए तो function call में भी दो पैरामीटर चाहिए। function declaration में अगर उसका टाइप इंटीजर है तो function call में भी उसका टाइप इंटीजर ही होना चाहिए। Okay, so let's see some example. First, function declaration कैसे रहता है। First we write the return type, कौन सा टाइप का वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है। ओके, अभी यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। ओके, इनमें से कोई एक वैल्यू आएगा रिटर्न टाइप। ओके, इट इज डिपेंड ऑन फंक्शन, कौन सा वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है, इंटीजर दे रहा है, आउटपुट में कैरेक्टर दे रहा है या कोई अदर वैल्यू दे रहा है। एंड इफ द फंक्शन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ओनली एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स, दैट टाइम हियर वी राइट द void, void। ओके, void लिखना है अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रहा है। देन वी राइट फंक्शन नेम। अभी फंक्शन नेम, अभी लाइब्रेरी फंक्शन का नेम तो ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन है दैट टाइम वी गिव द एनी नेम टू द फंक्शन। ओके, अगर मेरा एडिशन ऑफ टू नंबर है तो आई गिव नेम ऐड। ओके, सो आपके ऊपर है आपको फंक्शन का नाम क्या रखना है। ओके, सो इट आल्सो हैव सम रूल्स जो हमने वेरिएबल के लिए रखा है। वी कैन नॉट स्टार्ट नेम ऑफ द फंक्शन विद इंटीजर, वी कैन नॉट स्टार्ट विद द सिम्बॉल्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर। ओके, दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ द नेम ऑफ द फंक्शन। देन आर्ग्यूमेंट लिस्ट, मतलब वो फंक्शन के लिए कौन से आर्गूमेंट है। आर्गूमेंट का वी कैन पास 0 आर्गूमेंट ऑल्सो, वी कैन पास नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स ऑल्सो, आपके ऊपर डिपेंड है। ओके,
डिक्लेरेशन के टाइम उसको कितना आर्गुमेंट देना है। आर्गुमेंट सिंपल वी कैन टेक द इनपुट, इनपुट के लिए हम आर्गुमेंट यूज करें। ओके, और यहाँ पे अगर मैंने दो आर्गुमेंट लिखा इंटीजर x कॉमा इंटीजर y, दैट टाइम व्हेन यू कॉल द फंक्शन दैट टाइम ऑल्सो यहाँ पे इंटीजर ही वैल्यू होना चाहिए, 10 20 जो भी आप पास करोगे वो उसका इंटीजर में होना चाहिए। ओके, सो दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन। देन नेक्स्ट वन फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल करने के लिए आपको सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है एंड आर्गुमेंट लिस्ट। ओके, यहाँ पे जितना लिखा वहाँ पे इधर भी आपको उसका ही वैल्यू और वही टाइप में डेटा आपको पास करना है। नेक्स्ट वन फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन रिटर्न टाइप लिखना है, वॉइड फंक्शन लिखना है। ओके, वॉइड नहीं तो जो भी रिटर्न टाइप है वो लिखना है। फंक्शन नेम एज इट इज आएगा, आर्गुमेंट लिस्ट भी वैसा का वैसे आएगा, यहाँ पे डिक्लेरेशन के टाइम जो दिया है वो, और यहाँ पे फंक्शन बॉडी आपको करली ब्रैकेट में लिखना है। ओके, जो भी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे लिखना, मतलब जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना है उसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फंक्शन बॉडी में आपको लिखना है। सो दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ फंक्शंस। वी अगेन सी दिस टॉपिक इन यूजर डिफाइंड फंक्शन। जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन देखेंगे तब आपको ये वापस सब मैं बताऊंगा। Here I will give example. This is our main program. Okay, पहले हेडर फाइल यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, हेडर फाइल आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में ये मेन फंक्शन है, void main इंटीजर नंबर लिया है। ओके, एक नंबर वेरिएबल क्रिएट किया है इंटीजर टाइप का, एंड उसमें हमने क्या किया है स्क्वायर इन ब्रैकेट 4। अभी व्हाट इज स्क्वायर, अभी ये कंपाइलर को पता होना चाहिए व्हाट इज यूज ऑफ दिस स्क्वायर। ओके, स्क्वायर इन ब्रैकेट आई पास वन वैल्यू, सो व्हेन द सर्कल ब्रैकेट कम्स दैट मीन्स इट इज फंक्शन, ये कोई फंक्शन है। ओके, देन हियर वी यूज printf। अभी स्क्वायर भी फंक्शन है, printf भी फंक्शन है, बट printf क्या है, इट इज यूज लाइब्रेरी फंक्शन। stdio.h में इसका डिक्लेरेशन ऑलरेडी दिया है। ओके, बट स्क्वायर इज नॉट प्रेजेंट इन एनी लाइब्रेरी, सो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन। अभी ये नीचे यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन ये यहाँ पे डिस्प्ले किया है। कैसे डिफाइन किया उसको, इंटीजर इज द व्हाट इज इंटीजर, इंटीजर इज द रिटर्न टाइप, मतलब ये जो फंक्शन है एग्जीक्यूशन के बाद इंटीजर वैल्यू देगा। sqrt इज द नेम ऑफ फंक्शन, ये मेरे फंक्शन का नाम है। ओके, देन हियर ब्रैकेट में मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया है इंटीजर n1। ओके, इंटीजर n1 एक वेरिएबल लिया है मैंने यहाँ पे। ओके, सो इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ओके, कौन से टाइप का लिया है, इंटीजर। ओके, देन इन कर्ली ब्रैकेट आई राइट द बॉडी ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा, एक वेरिएबल लिया है मैंने इंटीजर x। ओके, इज इक्वल टू n1 इंटू n1। सो सिंपल x में क्या करेगा, वो n1 का जो भी वैल्यू रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेगा n1 से। ओके, मतलब सिंपल स्क्वायर फाइंड करेगा और x में स्टोर कर देगा। ओके, लास्ट में मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है रिटर्न इन ब्रैकेट x। सो सिंपल इसका मीनिंग है ये क्या करेगा, जो भी x का वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। अभी एग्जीक्यूशन कैसे होगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन। मेन फंक्शन से सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। सो देन फर्स्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, वो एक वेरिएबल क्रिएट करेगा। देन वो वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के टाइम नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे जब ये कंपाइलर को ये मिलेगा स्क्वायर, सो दैट टाइम इट सर्च द फंक्शन विथ दिस नेम। ये नाम का कोई फंक्शन है क्या, वो सर्च करेगा प्रोग्राम में, एंड देन डायरेक्टली कंट्रोल गोज टू हियर, यहाँ अंदर वो कंट्रोल दे देगा। अभी सिंपल इसका मीनिंग क्या है, n1 का जो है वो कंपेयर किससे करेगा, इधर जो आपने पास किया है। सो सिंपल यहाँ पे n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। ओके, सो n1 4 हो जाएगा, एंड देन x इज इक्वल टू n1 इंटू n1, 4 इंटू 4 16, x का वैल्यू हो जाएगा 16, रिटर्न करेगा 16। ओके, सो इसका आउटपुट क्या आएगा, 16। सो 16 किधर स्टोर हो जाएगा, नम। समझा। सो सिंपल हियर वी डिफाइन द फंक्शन एंड हियर वी ये जो रेड में लाइन है ये इसको बोलते हैं कॉल, फंक्शन कॉल। ओके, और वो नीचे बॉक्स में जो डिफाइन किया ये फंक्शन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, सॉरी फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन है। फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर भी किया है और डिफाइन भी किया है। ये जो डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन है ये आप 2 स्टेज में भी कर सकते हो। ओके, डिफरेंट कोड लिखा डिक्लेरेशन का और डेफिनेशन का तो भी चलेगा, नहीं तो एक ही इसमें डिक्लेयर भी कर दिया और डिफाइन भी कर दिया। ओके, सो सिंपल यहाँ पे नम का वैल्यू हो जाएगा 16। देन यहाँ पे 16 प्रिंट एफ बाय यूजिंग प्रिंट एफ स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या किया है 16 प्रिंट किया है, यहाँ पे सेमीकोलन बाकी है, एक सेमीकोलन चाहिए प्रिंट एफ के बाद। ओके, सो दिस इज सिंपल
function, example of function. We see more programs that time you clearly understand. So next, what is return value in function? Return value function में return value क्या होता है? Okay, so मैंने यहाँ पे मैंने टाइम बताया, यहाँ पे return value क्या था? Integer. Okay, so let's see what is return value in function. C function may or may not return a value. May or may not मतलब रिटर्न भी कर सकता है, नहीं तो नहीं भी कर सकता है. ओके, वैल्यू फ्रॉम फंक्शन. इफ यू डोंट हैव टू रिटर्न एनी वैल्यू फ्रॉम फंक्शन. ओके, अगर आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना है, देन यूज वॉइड फॉर द रिटर्न टाइप. ओके, सो आपको रिटर्न टाइप क्या यूज करना है? वॉइड. ओके, हियर एग्जांपल विदाउट रिटर्न वर्ड. यस, ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिर्फ वॉइड फंक्शन लिया, सॉरी वॉइड रिटर्न टाइप लिया. हेलो फंक्शन का नेम है हेलो, एंड इन ब्रैकेट आई राइट ओनली स्टेटमेंट प्रिंटफ. सो सिंपल, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये लाइन जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इफ यू वांट टू रिटर्न एनी वैल्यू फ्रॉम फंक्शन यू नीड टू यूज एनी डेटा टाइप सच एज इंटीजर, लॉन्ग, कैरेक्टर और एक्सेट्रा. ओके, अगर आपको कोई वैल्यू रिटर्न करना है दैट टाइम ये टाइप का वैल्यू आप रिटर्न कर सकते हो, कोई भी डेटा टाइप. ओके, सो हियर इज द फंक्शन विद द रिटर्न वैल्यू. ये मेरा फंक्शन नेम का है गेट. ओके, और रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर. ब्रैकेट में सिंपल मैंने क्या किया है? रिटर्न 10. सो ये जो फंक्शन कॉल होगा तो वो क्या रिटर्न करेगा? 10. सिंपल 10 रिटर्न करेगा वो. ओके, सो 10 इज द इंटीजर टाइप. सो हेंस आई राइट इंटीजर हियर. हियर इंटीजर क्यों लिखा है? बिकॉज दिस फंक्शन रिटर्न इंटीजर वैल्यू. यहाँ पे रिटर्न 10.5 रहता तो मैं यहाँ पे फ्लोट लिखता. ओके, रिटर्न कोई अल्फाबेट रहता तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर लिखता. Okay, so depend on your function, we set the return type. Then the return type depend on the value to be returned from the function. Okay, return type किसके ऊपर डिपेंड है? जो भी वैल्यू रिटर्न हो रहा है फंक्शन से उसके लिए वो रिटर्न टाइप जरूर. ओके, अगर आपको सिर्फ वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है फंक्शन में जो लिखा है तो ये void यूज करो. डोंट राइट एनी डेटा टाइप. ओके, सिर्फ void लिखा तो वो सिंपल एग्जीक्यूशन करेगा, वहाँ पे आपका आउटपुट प्रिंट कर देगा, रिटर्न कोई नहीं कर. और फॉर रिटर्न वैल्यू वी यूज द रिटर्न. ओके, ये एक कीवर्ड है रिटर्न. ओके, सो ये भी हम यूज करते हैं फंक्शन में, ये तो रिटर्न करने के लिए हम ये यूज करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट विद द टाइप्स ऑफ फंक्शन. ओके, डिपेंडिंग ऑन वेदर फंक्शन इज डिफाइंड बाय यूजर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन सी कंपाइलर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन. ओके, इसमें 2 टाइप है. किसके ऊपर डिपेंड है? डिपेंडिंग ऑन डेफिनेशन. किसने डिफाइन किया है? यूजर ने डिफाइन किया है क्या सी में ऑलरेडी डिफाइंड है? इसके ऊपर से 2 टाइप है. ओके, कौन से टाइप है वो? फर्स्ट वन इज प्री डिफाइंड फंक्शन एंड सेकेंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन. ओके, अभी प्री डिफाइंड फंक्शन में कौन से फंक्शन आते हैं? लाइब्रेरी फंक्शंस आते हैं, डिक्लेरेशन इन हेडर फाइल्स. ओके, सेम ही है उसका मीनिंग. हमने लास्ट चैप्टर में देखा था स्ट्रिंग फंक्शंस विच आर प्रेजेंट इन string.h लाइब्रेरी. strcmp, strcpy, strlen. Okay, so these are the string handling functions which are already defined in C compiler in which header file? string.h. So जब भी हमने ये प्रोग्राम में यूज किया तब हम उसको हेडर फाइल में string.h हेडर फाइल डिफाइन करते थे. ओके, सो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? प्री डिफाइंड फंक्शन, जो ऑलरेडी लाइब्रेरी में डिफाइन किया है. Okay, second example, printf and scanf. In almost every program we use this function, printf and scanf. These 2 functions are already defined in which library? stdio.h library. So these are called as library function. Okay, जो already C में डिफाइन किया हुआ है पहले से. अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ऐसे नंबर ऑफ फंक्शन मिल जाएंगे जो ऑलरेडी C में डिफाइन किया हुआ. ओके, सो फर्स्ट टाइप इज प्री डिफाइंड फंक्शन. सिंपल प्री डिफाइंड मतलब पहले से डिफाइन किया हुआ फंक्शंस. ओके, देन यूजर डिफाइंड फंक्शन इज सेकंड टाइप. यूजर डिफाइंड फंक्शन टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, ये एक टाइप है यूजर डिफाइंड फंक्शन. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. क्या है यूजर डिफाइंड फंक्शन? द नेम इंडिकेट. यूजर डिफाइंड मतलब जो भी प्रोग्रामर है, जो भी प्रोग्राम क्रिएट कर रहा है उसको बोलते हैं यूजर. ओके, अगर यूजर ने कोई फंक्शन डिफाइन किया है, अगर मुझे फाइंड करना है एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स के लिए भी कोई फंक्शन रहेगा, लेकिन मुझे कोई अलग एरिया ऑफ सर्कल के लिए फंक्शन डिफाइन करना है. अगर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे एरिया ऑफ सर्कल के लिए. ओके, सो व्हेन प्रोग्रामर डिफाइन एनी फंक्शन
or user define any function, that time the function is called a user defined function. Okay, so in this chapter हम दोनों टाइप का फंक्शन देखेंगे. So these are the two types of function in C. Okay, so in this chapter we see the very main concept, that is function. Okay, function simple. In remember 2-3 points. Function is the set of instruction which perform some specific task. Second one, function declaration कैसा है, function definition कैसा है, function calling. These are the three main terminology of function. Next one, we can call function anytime in program and anywhere in program. आप कहाँ पे भी कॉल कर सकते हो और कितने बार भी उसको कॉल कर सकते हो. एडवांटेज ऑफ फंक्शन इज इट रिड्यूस द रीराइटिंग ऑफ कोड अगेन एंड अगेन. सेम कोड को वापस लिखने का जरूरत नहीं है. फंक्शन is one advantage of this function. And function improve the readability. Function responsible for reusability of the code. So these are the function advantage and need. Okay, so this chapter is very important. From next chapter we first see the library functions क्या क्या है, and then we see next user defined function. So all student see, and if any doubt then contact me. Thank you.